Action. Very good afternoon, boys and girls. I welcome you to yet another session of CA Foundation Economics, where we have started learning the chapter theory of demand and supply. Today is bound to be the last day of preparation of this chapter number 2, theory of demand and supply. So far we have completed theory of demand, we have completed the theory of consumer behavior. In yesterday's lecture we have started the discussion about supply. Supply is constituted with three elements of willingness, ability and offer. Supply is expressed in terms of quantity, price and time. Then we saw how supply is different from sale, because supply does not mean what actually sold, but supply means what is offered for sale. What is offered for sale? Yes or no? हाँ या ना? Yes or no? फिर इसके बाद हमने देखे various determinants of supply which determine the supply for a commodity or quantity supplied. After understanding the various determinants of supply, we understood the law of supply. The law of supply is again given by Professor Alfred Marshall, who states as the price of the product increases, quantity supplied increases. As the price of the product decreases, quantity supplied decreases. Yes or no? Hence there is inverse relationship. Hence there is, अरे वाह ध्यान है, hence there is direct positive relationship between price of the commodity and its quantity supplied. Yes or no? Lastly we saw the variations in supply. The variations in supply due to price can be understood as expansion of supply and contraction of supply. Due to factors other than price, it is called as increase in supply and decrease in supply. Increase in price leading to increase in supply is called as expansion of supply. Expansion of supply leads to upward movement on the same supply curve. Decrease in price leading to decrease in supply is called as contraction of supply, and contraction of supply leads to downward movement on the same supply curve. Yes or no? Right? Increase in supply due to factors other than price leads to rightward shift in the supply curve, and decrease in supply due to factors other than price leads to leftward shift in the supply curve. This is what we have learned till date. Now let's move on to the next concept, that is elasticity of supply. Now we all know elasticity means change. Elasticity is a tool which is used to measure change. Same like the law of demand, the law of supply only states us the direction of change. Law of supply में हमने क्या देखा? As the price increases, supply increases. As the price decreases, supply decreases. Yes or no? Do you agree? Do you agree? As the price increases, supply increases. As the price decreases, supply decreases. हाँ या ना? हाँ या ना? Right? Direction of change law of supply बताता है, लेकिन increasing price के साथ कितना quantity change supply में है, ये मेजर लॉ ऑफ सप्लाई नहीं करता. द लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट मेजर द क्वांटिटेटिव चेंज इन सप्लाई. हेंस फॉर measuring the quantitative change in supply due to various factors, we use the tool which is called as elasticity. We use the tool which is called as elasticity. Elasticity of supply यानी कि change in supply. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इस टूल का इस्तेमाल करके हम मेजर करेंगे द चेंज इन सप्लाई. हाँ या ना? हाँ या ना? रिमेंबर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. यस और नो? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन वेरिएबल. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोला मैं, वेरिएबल. प्राइस इलास्टिसिटी नहीं पूछा. परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन वेरिएबल. सेम, सिर्फ डिमांड को हटाओ, सप्लाई को लिखो. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन वेरिएबल. इज इट डिफिकल्ट? एम आई टीचिंग समथिंग न्यू? इसीलिए पहले दिन क्या बोला था, इलास्टिसिटी जब चालू किया था, ये न्यूमेरिकल 11 एकदम ध्यान से करो, क्योंकि आने वाले चैप्टर में इसी का रिपीटेशन है. अगर आपने उस वक्त 11 न्यूमेरिकल बगैर छापा छापी किए अगर खुद से सॉल्व किए हैं तो आपको इलास्टिसिटी के बाकी के टाइप्स
सप्लाई इलास्टिसिटी, ये सारे चीजें बड़े आसानी से आ जाएंगे. इज इट ओके? राइट. सो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन वेरिएबल, जिसके अंदर मेजरली अपने को सप्लाई में एक ही टाइप देखना है जो कि है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड, सॉरी और सप्लाई. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, where percentage change in supply is equal to new quantity supplied minus old quantity supplied upon old quantity supplied multiplied by 100. Percentage change in price is equal to new price minus old price upon old price multiplied by 100. Direct formula will be same. Change in quantity, but which quantity supplied? Change in quantity upon change in price multiplied by original price upon original quantity supplied. सब डिमांड की जगह पर सप्लाई, लेकिन कैलकुलेशन सारा सब कुछ सेम है, हाँ या ना? देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है. द प्राइस ऑफ नोटबुक इंक्रीजेस फ्रॉम 200 टू 210. द प्राइस ऑफ नोटबुक इंक्रीजेस फ्रॉम 200 टू 210. Consequently, the quantity supplied increased from 250 to 300 notebooks. Calculate elasticity of supply. Elasticity of supply is equal to change in quantity, percentage change in quantity supplied upon percentage change in price. Percentage change in quantity supplied कैसे निकालेंगे बेटा? New supply minus old supply upon old supply multiplied by 100. 300 minus 250 upon 250 multiplied by 100 upon 210 minus 200 upon 200 multiplied by 100. देखो अब क्योंकि दोनों वेरिएबल्स में रिलेशनशिप कैसा है? डायरेक्ट पॉजिटिव. कहीं पर भी कैलकुलेशन में माइनस नहीं आएगा, न्यूमरेटर में भी नहीं और डिनोमिनेटर में भी नहीं, दोनों तरफ पॉजिटिव ही आएगा. जैसे हम परसेंटेज चेंज इन डिमांड या परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इन दोनों में से कोई ना कोई एक टर्म नेगेटिव रह रहा था जब हम प्राइस इलास्टिसिटी अंडर डिमांड कैलकुलेट कर रहे थे. प्राइस इलास्टिसिटी जब हम सप्लाई में कैलकुलेट कर रहे हैं, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई और परसेंटेज चेंज इन प्राइस, बोथ ऑफ देम विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, क्योंकि दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा है? डायरेक्ट पॉजिटिव. अरे गेटिंग माय पॉइंट? लॉजिक समझ में आ रहा है क्या तुमको? लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? नेगेटिव है नहीं है कुछ फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली इलास्टिसिटी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, बिकॉज इलास्टिसिटी लाइज बिटवीन 0 टू इंफिनिटी, नॉट नेगेटिव. इज इट ओके? राइट. सो इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 4. नाउ यू नो, यू आर नॉट प्लेन लाइक डिमांड. नाउ यू नो व्हाट डज 4 डिनोट? विच टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी? इलास्टिक, और वी ऑल्सो कॉल एट रिलेटिवली इलास्टिक. आर यू एबल टू रिकॉल? आर यू एबल टू रिकॉल? तो अभी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में अपने को दो ही मेथड है, एक परसेंटेज मेथड, दूसरा डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड. इसके बाद डायरेक्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के टाइप्स, जो कि कैसे कैसे हैं. सबसे पहले क्या है? परफेक्टली इनइलास्टिक, फिर इसमें क्या है? इनइलास्टिक, फिर यूनिट इलास्टिक, फिर इलास्टिक एंड फाइनली परफेक्टली इलास्टिक. याद आया? याद आया? ठीक है, फिर देख लेते हैं अगर याद आया तो. टेबल की तरफ आ जाओ. डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेशन किया है, दोनों की तरफ क्या आया है हमारा? 4. अभी क्या करेंगे हम? बाकी सब चीजें सेम है, सिर्फ डिमांड को हटा के क्या लिखना है अपने को? सप्लाई. व्हेन द न्यूमेरिक वैल्यू इज 0, अगर कैलकुलेशन में न्यूमेरिक वैल्यू इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अगर 0 आता है तो व्हाट डज इट डिनोट? क्वांटिटी सप्लाइड डज नॉट चेंज. क्या बोल रहा हूं मैं? Quantity supplied does not change as does the price. Yes or no? इस सिचुएशन को क्या कहेंगे हम? परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई. यानी प्रोजेक्टर के दाम बदल रहे हैं तो भी प्रोजेक्टर का सप्लाई बदल नहीं रहा, लैपटॉप के प्राइस बदल रहे, लैपटॉप का सप्लाई नहीं बदल रहा, एसी के प्राइस बदल रहे तो एसी का सप्लाई नहीं बदल रहा, इस कंप्यूटर के प्राइस बदल रहे, कंप्यूटर का सप्लाई नहीं बदल रहा. So whenever there are changes in price, but we see no change in demand, it's a situation where elasticity will come to 0
and this type of elasticity is called as perfectly inelastic supply. आया ना, आया ना. Remember demand, remember types, वही यहाँ पर रिपीटेशन है. नया कुछ है क्या? नहीं. सिर्फ डिमांड की जगह क्या लिखना है अपने को? सप्लाई. इज इट डिफिकल्ट? ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1. if the elasticity is greater than 0 but less than 1, quantity supplied changes by a smaller percentage. Quantity supplied changes by a smaller percentage than does the price. यहाँ पे पहले से वाइस वर्सा नहीं है, यहाँ पे लॉजिक सेम है. अगर इन इलास्टिक है तो क्वांटिटी सप्लाइड चेंजेस बाय अ स्मॉलर परसेंटेज देन डज द प्राइस. इसको हम क्या कहते हैं? रिलेटिवली इन इलास्टिक सप्लाई. नेक्स्ट, अगर 1 आती है तो क्वांटिटी सप्लाई चेंजेस इन द सेम प्रपोर्शन एज डज द प्राइस. यानी परसेंटेज चेंज इन सप्लाई, percentage change in quantity supplied and percentage change in price, they both will be equal. They both will be equal. न्यूमेरिक वैल्यू क्या आएगा? 1. क्या बोलते हैं हम इसे? यूनिटरी इलास्टिक और यूनिट इलास्टिक. नेक्स्ट, ग्रेटर देन 1 लेस देन इंफिनिटी. ग्रेटर देन 1 लेस देन इंफिनिटी. क्वांटिटी सप्लाइड चेंजेस बाय अ लार्जर प्रपोर्शन. भले क्वांटिटी सप्लाइड changes by a larger proportion than does the price. This is called as relatively elastic supply. Hi Anna. Next point, infinity. अगला पॉइंट क्या है? infinity. infinity यानी क्या है? Producers are ready to supply all or none of the quantity even if there is a slight change in price. थोड़ा सा भी प्राइस में अगर मामूली इधर उधर हो जाता है, एक तो प्रोड्यूसर सब कुछ सप्लाई कर देंगे, ऑफर कर देंगे, या फिर कुछ भी नहीं करेंगे. यानी यहाँ पर चेंज कैसा है? इनफिनाइट चेंज है. क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज कैसा है? इनफिनाइट. अ स्लाइट चेंज इन प्राइस में लीड टू इनफिनाइट चेंज इन सप्लाई. इसे हम कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई. ये हो गया टेबल. अब इस टेबल के हिसाब से एक एक टाइप, एक एक का न्यूमेरिकल. डू यू थिंक आई शुड एक्सप्लेन दिस? या तुम इतना पार्ट होमवर्क के तौर पे खुद से कर सकते हो? कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो होमवर्क 5 डिस्कस कर लेता हूं. इसके अंदर सिर्फ सप्लाई कर्व का प्लेसमेंट अपन देख लेंगे. सप्लाई कर्व का प्लेसमेंट देख लेंगे. पहला क्या है? परफेक्टली इनइलास्टिक. परफेक्टली इनइलास्टिक के अंदर न्यूमेरिक वैल्यू कितनी आती है? 0. क्वांटिटी सप्लाइड डज नॉट चेंज एज डज द प्राइस. एंड परफेक्टली इनइलास्टिक हम इसे बुलाते हैं. देखो, प्राइस क्या है? 10, क्वांटिटी सप्लाइड 20. प्राइस 5, क्वांटिटी सप्लाइड 20. अगर प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी सप्लाइड कम होनी चाहिए. यहाँ पे हो रही है कि चेंज? नहीं. इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कितना है? 0. 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग विल ऑलवेज बी 0. 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग विल ऑलवेज बी 0. हाया ना? हाया ना? तो अगर न्यूमेरिक वैल्यू 0 आती है तो इससे हमें क्या समझ में आता है? परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई. देखो यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला से चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाइड बाय प्राइस बाय क्वांटिटी. अगेन 0 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 बाय 20. 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज 0, मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज ऑल्सो 0. जो इलास्टिसिटी वैल्यू विल बी 0. यानी हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि प्राइस के अंदर चेंज है. कितना चेंज है? Price is reducing 50%. The percentage change in price is 50%. But what is the percentage change in supply? 0. This is called as perfectly inelastic supply. यानी प्राइस बदले, बढ़े, कम हो, कुछ उसको फर्क नहीं पड़ता. क्वांटिटी सप्लाइड जितनी थी उतनी ही रहेगी. There is no change in quantity supplied. Whenever there is no change in quantity supplied, it is called as perfectly inelastic supply. Yes or no? तो perfectly inelastic supply कब कैसी होगी? फिर पैरेलल टू y एक्सिस, जैसे वहां थी डिमांड की, जैसे ही पैरेलल टू y एक्सिस. पैरेलल टू y एक्सिस, राइट? क्योंकि जो 5 प्राइस था तो मेरी क्वांटिटी सप्लाइड, देखो जब प्राइस 10 था मेरी क्वांटिटी सप्लाइड 20 थी. जब प्राइस 5 हुआ फिर भी क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है? 20.
तो लाइन ड्रॉ कर लो तो सप्लाई कर्व कैसे आएगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस, यस और नो. सो हाउ इज द सप्लाई कर्व, स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व, पैरेलल टू वाई एक्सिस इन केस ऑफ perfectly inelastic supply. Next, unit elastic. Unit elastic में वैल्यू कितना आता है 1. वैल्यू कितना आता है 1. Quantity supplied changes in the equal proportion as does the quantity supplied changes in equal proportion as does the price. इसमें क्या कहते हैं हम इसे, यूनिटरी इलास्टिक. 10 20 प्राइस कितना बढ़ रहा है 100%. प्राइस कितना बढ़ रहा है 100%. 10 रुपए का चीज 20 रुपए में हो जा रहा है. देयर इज परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है यहाँ पर 100%. व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन सप्लाई 10 20, दैट इज ऑल्सो 100%. 100% by 100% is 1. 100 by 100 is 1. न्यूमेरिक वैल्यू कम्स टू 1, यानी क्वांटिटी सप्लाई चेंजेस इन द सेम प्रोपोर्शन एज डज द प्राइस, जो कि कितना है 100% इज इक्वल टू 100%. आया ना, इसे हम क्या कहते हैं, यूनिटरी इलास्टिक. अब इसका क्या देखना है अपने को, डायरेक्ट फॉर्मूला के कैलकुलेशन आप देख लीजिए. आया ना. अब जब हम यूनिट इलास्टिक की सप्लाई कर्व देखते हैं, इट्स अ स्ट्रेट लाइन लीनियर लाइन सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यस और नो. It's a linear line raising upward from left to right because quantity supplied and price, they both are changing in equal proportion. Hence supply curve in case of unit elastic or unit elastic supply or unit elastic demand will never be curvaceous. Straight line demand curve, straight line supply curve होता है जब unit elastic होता है. जब unit elastic होगा, जब कभी भी यूनिट इलास्टिक होगा, चाहे डिमांड कर्व हो चाहे सप्लाई कर्व हो, वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, linear line, yes or no. This curve can also be called as rectangular hyperbola, same like the demand curve. Next, elastic or relatively elastic. Numeric value greater than 1 and less than infinity. Price 10 changing to 15. So what is percentage change in price? 50%. बगैर कैलकुलेशन किए समझ में आता है. इतना गैस, इतना मैथ्स आपका फास्ट चलना चाहिए दिमाग. 10 का 15 हो गया, 10 का 10% कितना होता है 1 रुपया, तो 5 रुपया बढ़ गया तो कितना हुआ 50%. 10 रुपए का 10% कितना होता है 1 रुपया, तो 5 रुपया कितना, 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज 50%. सो व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन प्राइस 50%. अब क्वांटिटी सप्लाइड 10 है, वो हो गई 20, तो इस हिसाब से फ्रेम कितना हुआ परसेंटेज चेंज इन सप्लाई. देख क्वांटिटी 10 थी, चेंज होके 20 हो गई. जैसे मैंने डायरेक्ट लॉजिक बताया, अब तू बता परसेंटेज चेंज इन सप्लाई कितना है. हाँ 100 है ना, राइट. अभी 10 था पहले सप्लाई, आप कितना हुआ 20, बरोबर. एकदम डबल हो गया. डबल हो गया यानी 100% चेंज है. या फिर से वही लॉजिक लगा, 10 है, 10 का 10% कितना होता है 1, चेंज कितना है 10 है, मतलब 10 के ऊपर कितना बढ़ा है और 10 बढ़ा है. 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 20, सॉरी 100. 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 अगेन इज 100. कॉमन सेंस, जो कॉमन लॉजिक दिमाग में आने चाहिए, जो फास्ट सॉल्विंग के लिए जरूरी है. ये प्राइस चेंज वगैरह गिवन लिख के ही आपको समझ में आना चाहिए कि इसका परसेंटेज चेंज क्या है. उतना कैलकुलेट करने का टाइम अपने पास नहीं है, क्योंकि ये कैलकुलेशन अपने को एमसीक्यू में करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए मैंने समझाए थे. अभी यहां देखो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कितना है बेटा 100%. आया ना. परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है बेटा 50%. व्हाट इज ग्रेटर, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. जब क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा प्रोपोर्शन से चेंज होता है देन प्राइस, देन इट इज अ सिचुएशन ऑफ इलास्टिक सप्लाई. इट इज अ सिचुएशन ऑफ इलास्टिक सप्लाई. आया ना, आया ना, यस और नो. तो देखो सप्लाई का यहाँ पे थोड़ी फ्लैटर है क्या, थोड़ी फ्लैटर है क्या, आया ना. सो विल हैव अ लिटिल बिट फ्लैटर सप्लाई कर्व. नेक्स्ट, परफेक्टली इलास्टिक. एक मिनट,
परफेक्टली इलास्टिक पे लास्ट आते हैं. रिलेटिवली इन इलास्टिक. रिलेटिवली इलास्टिक ग्रेटर देन 0 लेस देन 1. ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1. प्राइस चेंज कितना है 10 to 20. तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है बेटा 100%. है ना. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना बेटा ये 50%. So can I say quantity supplied changes by a smaller percentage, smaller proportion than does the price? Yes or no? Yes or no? Quantity supplied changes by a smaller percentage than does the price. Numeric value क्या आएगी इसकी 0.5 which is greater than 0 and less than infinity. So whenever quantity supplied changes by smaller percentage than does the price, this situation is called as inelastic supply. क्या बोलते हैं हम inelastic supply. हाँ या ना. हाँ या ना. चलो फिर यहाँ पे वो थोड़ा सा फ्लैट है तो यहाँ पे सप्लाई कर्व कैसे होगी थोड़ी स्टीप होगी. A steeper supply curve. Yes or no? Logic does not change. Steeper, flatter, shape वैसे ही है. Perfectly elastic. Numeric value comes to infinity. Now we'll see no change in price. For understanding purpose हमने यहाँ पे लिया है कि हम प्राइस में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं. We change the quantity supplied. परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है बेटा 0%. कितना है 0%. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कितना है 100%. तो इट इज 100 डिवाइडेड बाय 0. कैलकुलेटर पे उस दिन किया था. एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज ऑलवेज इंफिनिटी. सो कैन आई से अंडर दिस एग्जाम्पल we can see infinite change in supply due to a slight change in price. Yes or no? इस सिचुएशन को क्या कहते हैं हम perfectly elastic supply. Now the curve will be parallel to x-axis. देखो है क्या parallel to x-axis. Yes or no? टाइप सबको याद है. तो देखो बेटा स्केल जो है इसमें कोई भी चेंज नहीं है. चाहे वो डिमांड हो सप्लाई हो उसमें बदल है क्या कुछ भी नहीं है. अगर 0 है तो क्या है वो परफेक्टली इन इलास्टिक. फिर उसके बाद 1 है तो क्या है बेटा वो यूनिट इलास्टिक बरोबर. और इन्फिनाइट है तो परफेक्टली इलास्टिक. यहाँ पे जो बचता है वो क्या है इलास्टिक. यहाँ पे बचा तो क्या है बेटा इन इलास्टिक. चाहे वो डिमांड हो चाहे वो सप्लाई हो इट इज सेम. परफेक्टली इन इलास्टिक है तब क्या है पैरेलल टू y एक्सिस. दोनों में भी पैरेलल टू x एक्सिस. इलास्टिक है तो फ्लैटर है चाहे डिमांड हो सप्लाई हो. स्टीपर है चाहे डिमांड हो सप्लाई हो. और लीनियर है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है चाहे डिमांड हो सप्लाई हो. तो चेंज है क्या न्यूमेरिक वैल्यू और उसके टाइप टेबल एक बार याद कर लो. वापस वही रिपीटेशन है. इज इट इजी टू अंडरस्टैंड नाउ? If you were regular, if you didn't miss any lecture of foundation of elasticity, this portion will be very easy for you. अब मुझे बताओ कल से अब तक पढ़ाया कुछ डिफिकल्ट लगा सप्लाई में? कुछ नया कंसेप्ट है? अनडाउटेडली कंसेप्ट नए हैं लेकिन क्योंकि हमने डिमांड में एकदम अच्छे से किया इसलिए नया भी नहीं लग रहा और डिफिकल्ट भी नहीं लग रहा. अब सप्लाई यूनिट तो कितना इजी है. इसके लिए मैंने 7 दिन दिए तुम्हें प्रिपेयर करने के लिए. अभी से तुमको मालूम है कितने दिन के बाद एग्जाम है. मेरा बोलने का मतलब क्या है देखो पढ़ाई एक दिन के हिसाब से या एक वीक के हिसाब से नहीं होती. पढ़ाई प्लान करो महीने के हिसाब से तो होती है. क्या मैंने आपको यहां से आगे के 1 महीने का शेड्यूल दिया है ना? तो सीए फाउंडेशन की इकोनॉमिक्स की पढ़ाई यहां से अगले 1 महीने में कैसे करनी है ये आपको बता दिया. ये संडे डिमांड, नेक्स्ट संडे कंज्यूमर, नेक्स्ट संडे सप्लाई, नेक्स्ट संडे पूरा चैप्टर. आपको 28 दिन दे रहा हूं एक चैप्टर कंप्लीट करने के लिए. पूरा 1 महीना दे रहा हूं एक चैप्टर कंप्लीट करने के लिए. बोलना ही मत सर बहुत फास्ट हो रहा है. इतना प्लान स्टडी करने के बाद 28 दिन में नहीं होता कि रिवीजन ठीक से पूरा चैप्टर हफ्ते में 1 बार होता है. पहले टाइम लगने दो टाइम.
लेट से पहले 10 दिन में 12 दिन में कवर करोगे पूरा चैप्टर, लेकिन बाद में सेकंड रिवीजन को 12 दिन थोड़ी लगेंगे, वहां थोड़ा टाइम कम होता जाएगा। हाँ या ना? थोड़ा सा प्लान करो। पढ़ाई पढ़ाई होती है, सिर्फ पढ़ाई करने के लिए वक्त चाहिए, वही तो हमारे पास नहीं है, क्योंकि वो सारा वक्त तो वो स्नैप की स्ट्रिक मेंटेन करने में चला जाता है। चलो, आर वी ओके विथ ऑल द टाइप्स? आर वी ओके विथ ऑल द टाइप्स? डू यू वांट टू गो होम अर्ली? देन सिट स्ट्रेट, सिट डायरेक्ट। कमिंग ऑन टू द लास्ट कंसेप्ट। बहुत इजी है, बहुत इजी है। तालियां मत बजाओ, पहले कंसेप्ट खत्म करने दो। नाउ फ्रेंड्स, हमने पिछला वाला जो चैप्टर यूनिट देखा, डिमांड में हमने कंज्यूमर साइड समझी, डिमांड में हमने कंज्यूमर साइड समझा, हाँ या ना? डिमांड में हमने कंज्यूमर साइड समझा। कंज्यूमर साइड समझने के बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझा चैप्टर नंबर 2 में, जहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज एट द पॉइंट वेयर द बजट लाइन इज टैंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व। The point where the budget line is tangent to the indifference curve is the point where a customer or a consumer attains maximum satisfaction with the available budget. Yes or no? मैं प्रोड्यूसर हूं, even I want to know my equilibrium. प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम कहां होगा? At that quantity which I will produce and I will generate maximum profits. एक कंज्यूमर के लिए इक्विलिब्रियम कहां होता है? एट उस पॉइंट पे जहां पे अवेलेबल बजट के साथ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है। अवेलेबल बजट के साथ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जिस पॉइंट पे मिलता है वो हो गया कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम। वो क्या हो गया बेटा? कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम। लेकिन प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है। प्रोड्यूसर किस लिए प्रोड्यूस कर रहा है? सेटिस्फैक्शन के लिए। किसके लिए? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, पैसा। So, producer equilibrium will be at the point, producer equilibrium will be at the point where the producer will be able to maximize his profit. Is it okay? Producer's equilibrium. Producer's equilibrium refers to the market situation where the quantity demanded is equal to supply. मैंने आपको क्या कहा? प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम जो है वो क्वांटिटी दर्शाता है जहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। कौन से आउटपुट पे मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है वो समझने के लिए हमें कॉस्ट भी समझना होगा। इसीलिए पूरे तरीके से प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम जो आपको मुझे समझाना है वो समझने के लिए हमें अगला चैप्टर भी पहले कंप्लीट करना होगा। अगला चैप्टर जब मैं आप पढ़ाऊंगा, उसके जब मैं कॉस्ट कंसेप्ट आपको बताऊंगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा the production at a point where the profit is maximum. लेकिन अभी अपन कौन सा चैप्टर पढ़ रहे? थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब प्रोड्यूसर के हिसाब से कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी चाहिए ये समझना है। इस वाले चैप्टर में प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम जो है वो क्या कहने की कोशिश करता है कि आप एक प्रोड्यूसर हो, आपको क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है किसी कमोडिटी की। जैसे हमारे विष्णु को फर्नीचर प्रोड्यूस करना है, कितना क्वांटिटी फर्नीचर का प्रोड्यूस करना है ये समझना है उसे। अब मुझे बोलो, एग्जांपल के तौर पे लो, विष्णु इज प्रोड्यूसिंग 100 बेड्स, सॉरी 1000 बेड्स। प्रोडक्शन कितना है? 1000 बेड्स एंड ही हैज ऑफर्ड ऑल फॉर सप्लाई। सप्लाई कितना है? 1000 बेड का। सप्लाई कितना है? 1000 बेड का। लेकिन बेटा मार्केट में जो डिमांड है वो है सिर्फ और सिर्फ 500 बेड्स की। तो अब मुझे बोलो, एक मिनट, अब मुझे बोलो 1000 क्वांटिटी वो बना रहा है, मार्केट में बिक रहा है, डिमांड है 500 बेड की, तो अननेसेसरी 500 बेड का जो स्टॉक है वो उसके पास पड़ा रहेगा। वो 500 रुपए के अंदर ओवर द पीरियड उसका पैसा जो है वहां पर फंसा रहेगा, अटका हुआ रहेगा, राइट।
उसके अंदर उसका कैपिटल इन्वेस्टेड रहेगा जिसके ऊपर ब्याज चलता रहेगा। तो इतना क्वांटिटी अगर प्रोड्यूस करेंगे जितना मार्केट में जरूरत ही नहीं है, तो इससे प्रॉफिट होगा या कम होगा? प्रॉफिट उल्टा कम होगा, राइट। 1000 बेड का सप्लाई है, 1000 बेड का सप्लाई है, डिमांड 1500 बेड की है। डिमांड कितना है? 1500। बना तो 1000 रहा है, पूरा बिकेगा। और 500 बेड अगर बना के दे सकता तो वो 500 का भी प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन मिल रहा है क्या? नहीं। कैपेसिटी कितनी है? 1000 बेड की। हाउ मच ही इज कैपेबल ऑफ सप्लाइंग? क्योंकि सप्लाई इज कॉन्स्टिट्यूटेड विथ 3 एलिमेंट। क्या है? विलिंगनेस, एबिलिटी एंड ऑफर। एबिलिटी, इनके प्लांट की कितनी एबिलिटी है? 1000 बेड। जब इनकी प्लांट कैपेसिटी 1000 बेड की है तो ये 24 घंटे भी काम करे तो 2000 बेड बनने वाले हैं क्या? नहीं, क्योंकि मैक्सिमम आउटपुट इनके प्लांट में कितना निकाल सकते हैं? 1000 बेड का। क्योंकि हर एक प्लांट की कैपेसिटी होती है, हर एक प्लांट की कैपेसिटी होती है। क्या कैपेसिटी से ज्यादा कर सकते हैं क्या? नहीं। जैसे अभी हमारे इस्नू के फैक्ट्री में हमारा गणेश काम करता है, और कल मैंने एग्जाम्पल में क्या बोला था? हमारा एक लेबर गणेश इस्नू की फैक्ट्री में एक दिन में एक ही बेड बना सकता है, क्योंकि डिमांड ज्यादा है। क्योंकि डिमांड ज्यादा है, इसका मतलब हमारा एक गणेश के एक ही दिन में 2 बेड बना पाएगा क्या? क्योंकि उसकी एक कैपेसिटी है, प्लांट की अपनी एक कैपेसिटी होती। डिमांड 1500 की है तो मेरे को प्रॉफिट 1500 का होगा क्या विष्णु को? डिमांड 1500 की है तो क्या विष्णु को प्रॉफिट 1500 बेड का होगा क्या? कितने का होगा? 1000। सप्लाई 1000 का है, डिमांड खाली 500 है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1000 बेड का या 500 बेड का? कितना? तो समझदारी कितने किसमें है? समझदारी किसमें है? जितना डिमांड है उतना ही प्रोड्यूस करने में है, या उससे ज्यादा या कम करने में है? देखो, जितना डिमांड है उससे ज्यादा अगर प्रोड्यूस करते हो तो स्टॉक में पड़ा रहेगा, स्टॉक में पड़ा रहेगा। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो आप रेवेन्यू के पार्ट पे लूज करोगे, क्योंकि आपके पास डिमांड है लेकिन आप सप्लाई नहीं कर पा रहे। तो बेहतर क्या है? जितनी डिमांड है उतना सप्लाई करने की कोशिश करिए, जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई करने की कोशिश करिए। लेट्स से सप्लाई इज 1000 एंड डिमांड इज 1000। डू यू फाइंड इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस। डिमांड और सप्लाई में बैलेंस कब होगा? जब दोनों इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे? जब दोनों इक्वल होंगे। यहां पे इक्वल है क्या? सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। व्हेन सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, स्टॉक पड़ा रहेगा। नीचे वाला पॉइंट, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। इज देयर इक्विलिब्रियम? नो, बिकॉज डिमांड इज ऑफ 1500 but he can supply only 1000. That means demand of 500 will be unattended. लेकिन थर्ड सिचुएशन, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। जितना डिमांड है उतना सप्लाई है। सो कैन आई टेक और इंश्योर प्रॉफिट ऑफ ऑल 1000 बेड्स? यस, क्योंकि जितना डिमांड है उतना सप्लाई है। सो कैन आई से प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम विल बी एट द पॉइंट वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई? यस और नो? हाँ या ना? अभी ये है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल बी एट अ पॉइंट वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। और इस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे प्रॉफिट क्या होता है वो समझने के लिए अपने को अगला चैप्टर थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट समझना पड़ेगा। क्योंकि प्रॉफिट कैसे निकलता है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। प्रॉफिट कैसे निकलता है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। ना हमें रेवेन्यू पता है ना हमें कॉस्ट पता है। रेवेन्यू कॉस्ट हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी इस प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में हम सिर्फ वो क्वांटिटी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया है इसमें इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितनी है? 1000, क्योंकि 1000 इज अ क्वांटिटी वेयर क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? A point of equilibrium where the quantity demanded is equal to the quantity supplied gives us the equilibrium quantity. It's not price. Gives us the equilibrium quantity. प्राइस है नहीं, एक तरफ क्वांटिटी डिमांड है एक तरफ क्वांटिटी सप्लाइड है। पूरे डायग्राम में कहीं पर भी प्राइस है नहीं।
तो हमें इस वाले चैप्टर में क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, कि प्रोड्यूसर ने कितने क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, जितनी डिमांड है उतनी प्रोड्यूस करनी चाहिए। लेकिन जितनी डिमांड है उतनी प्रोड्यूस तो कर रहे हो, उसके ऊपर प्रॉफिट है लॉस है, ये हम कहां समझेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी is the quantity at which the seller is ready to sell or the buyer is ready to buy. Now rules for equilibrium price also. There is equilibrium price also, जो डिमांड और सप्लाई इक्वल कहां पर होगा, जैसे 1000 क्वांटिटी ऑफ बेड ऑफ सप्लाई विल बी इक्वल टू 1000 क्वांटिटी ऑफ डिमांड। अब कुछ दिन पहले मैं बोल रहा था, पहले दिन प्राइस ऑफ सप्लाई हम देख रहे थे, प्राइस ऑफ कमोडिटी डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। आपका बोलना था सर अपन सप्लाई का अगर प्राइस बढ़ा दिए तो डिमांड उसकी कम हो जाएगी। जैसे विष्णु ने अपने बेड का दाम 10,000 से 15,000 कर दिया तो चीजें उसकी महंगी हो जाएगी। सप्लाई वो बढ़ा रहा है लेकिन उसने प्राइस बढ़ाया है, प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड उधर से कम हो जाएगी। तो डिमांड और सप्लाई में बैलेंस रहेगा या इम्बैलेंस हो जाएगा, इम्बैलेंस। अब लॉजिक लगाओ, क्योंकि इक्विलिब्रियम हम निकाल रहे हैं तो दोनों का लॉजिक साथ में लगाना है, दोनों का लॉजिक साथ में लगाना है, बरोबर। अब लॉजिक लगाओ, विष्णु ने अगर बेड का दाम बढ़ा दिया तो वो सप्लाई बढ़ा देगा, लेकिन बेड का दाम ज्यादा है इसीलिए कंज्यूमर डिमांड नहीं करेगा, कंज्यूमर बेड की डिमांड कम कर देगा। सप्लाई बढ़ रहा है लेकिन डिमांड कम हो रहा है, इक्विलिब्रियम है क्या, नहीं। तो हमें इक्विलिब्रियम हासिल करने के लिए इक्विलिब्रियम प्राइस भी ऐसा मेंटेन करना होगा, वो प्राइस जहां पे विष्णु बेचने के लिए तैयार है और वो प्राइस जिस पे कंज्यूमर लेने को तैयार है। वो प्राइस क्या था हमारा, 10,000 रुपए। एक बेड की कीमत अगर 10,000 रुपए हो तो 10,000 रुपए में प्रोड्यूसर यानी विष्णु बेचने के लिए तैयार है और ग्राहक कंज्यूमर इज ऑल्सो रेडी टू बाय। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इक्विलिब्रियम प्राइस इज द प्राइस एट विच द सेलर इज रेडी टू सेल एंड द बायर इज रेडी टू बाय। जैसे seller is ready to sell at 15,000, but is the buyer ready to buy at 15,000? No. So in that scenario, supply will be more, demand will be less. Supply will be more, demand will be less. Supplier is ready to supply at 5,000, buyer is ready to buy at 10,000. In that scenario, demand will be more and supply will be less. विष्णु 5,000 में डिस्काउंट में बेच रहा है, ग्राहक अभी भी उस बेड के 10 रुपए देने के लिए तैयार है। इसका मतलब क्या है, ग्राहक को क्या मिलेगा, कंज्यूमर सरप्लस। व्हाट ही इज विलिंग टू पे 10,000 बट व्हाट ही इज एक्चुअली पेइंग 5,000। हर एक ग्राहक का क्या आ रहा है, 5,000 कंज्यूमर सरप्लस। एवरी वन विल बी विलिंग टू बाय दैट पर्टिकुलर बेड। तो बेड की डिमांड बढ़ जाएगी, बेड की डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन बेड का सप्लाई कम है क्या इक्विलिब्रियम दोनों के बीच में? नहीं, क्योंकि 5,000 में विष्णु सप्लाई तो कर रहा है लेकिन उसका जो स्टॉक है सिर्फ वही क्लियर कर रहा है। विष्णु क्या कर रहा है, जो उसके पास स्टॉक पड़ा है एक्सेस, उसको बेच बुझा के खत्म कर रहा है। एक्सेस और प्रोडक्शन कर रहा है क्या? नहीं। तो सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है। लेकिन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम कब होगा, जब विष्णु 10,000 में बेचने के लिए तैयार है और ग्राहक 10,000 रुपए में लेने के लिए तैयार है। तो द प्राइस एट विच द सेलर इज रेडी टू सेल and the same price at which the buyer is ready to buy is called as the equilibrium price. Equilibrium quantity कहाँ होती है, where quantity demanded is equal to quantity supplied. The point where quantity demanded is equal to quantity supplied is the equilibrium quantity. यानी इतना क्वांटिटी प्रोड्यूस करना चाहिए। हमारे एग्जाम्पल में कितना है, 1000। हमारे एग्जाम्पल में कितना है, 1000। 1000 डिमांड, 1000 सप्लाई। 1000 डिमांड, 1000 सप्लाई, हाँ या ना, यस और नो? 1000 डिमांड इज इक्वल टू 1000 सप्लाई, सो दैट इज नथिंग बट माय इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। 1000 क्या है मेरा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। द पॉइंट एट विच डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई will give me equilibrium quantity, and at the same equilibrium quantity whatever will be the price will be my equilibrium price, the price at which the seller is ready to sell and the buyer is ready to buy. When the quantity demanded is greater than the quantity supplied, there is upward movement in the equilibrium price. When the quantity demanded is less than quantity supplied, it leads to downward movement in the equilibrium price. अब ये जो रूल्स दिए हैं
रूल ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस, इसे समझने की कोशिश करो विद द न्यूमेरिकल्स. प्लीज पे अटेंशन, सिट स्ट्रेट एंड पे अ लॉट ऑफ अटेंशन. सिचुएशन ए, प्राइस 5, प्राइस 5, क्वांटिटी डिमांडेड 6, क्वांटिटी डिमांडेड 6, क्वांटिटी सप्लाइड 31, क्वांटिटी सप्लाइड 31. देखो 5 4 3 2 1, दिस इज द हाईएस्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटी. ये प्राइस देखो 5 4 3 2 1, हाईएस्ट प्राइस क्या है 5. अब देखो सप्लायर के हिसाब से व्हेन प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई इंक्रीजेस. हाईएस्ट प्राइस क्या है, हाईएस्ट प्राइस क्या है 5. सो एज अ प्रोड्यूसर विष्णु विल बी विलिंग टू सप्लाई ऑल द क्वांटिटी एट 5 रुपीज. यस और नो. सप्लाई कितना है 31, सप्लाई कितना है 31. लेकिन लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, एज द प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस. सबसे ज्यादा दाम कब है 5 रुपए, तो सबसे कम डिमांड कब होगी 5 रुपए में. तो डिमांड कितनी है 6, डिमांड कितनी है मेरी 6. अब देखो इंपैक्ट ऑन प्राइस. अब लॉजिक समझो, मेरी तरफ ध्यान दो, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं. प्लीज पे अटेंशन टुवर्ड्स मी. देखो मार्केट में चीजों का सप्लाई ज्यादा है और मार्केट में उन चीजों की डिमांड कम है. तो प्रोड्यूसर के पास बहुत सा स्टॉक पड़ा है जो उसे बेचना है, लेकिन लेने के लिए खरीदार तैयार नहीं है. तो खरीदार को अट्रैक्ट करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, चीजों के दाम कम करना पड़ेगा. सो व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन प्राइस, देयर विल बी डाउनवर्ड मूवमेंट इन द प्राइस. आया ना. विष्णु के पास कितना बेड है 31, कितना है बेटा 31, उसमें से डिमांड कितना है 5 का, यानी अभी भी विष्णु के पास कितने बेड पड़े हैं 26. अगर विष्णु बोलता है कि मैं कोई चेंज नहीं करूंगा, मैं 5 रुपए से मेरे बेड का मतलब 5 मतलब यहाँ पे समझ लो 5000 है, आई विल कीप द सेम प्राइस. सो विल देयर बी एनी इंक्रीज इन डिमांड, नो. देयर कैन बी इंक्रीज इन सप्लाई बट देयर वोंट बी इंक्रीज इन डिमांड. फिर और प्रोड्यूस करके उसके पास स्टॉक ही पड़ा रहना है, कुछ फायदा तो है नहीं, पैसा अटक के रहेगा. तो इसमें विष्णु का फायदा है क्या, नहीं. विष्णु चाहता है कि लोग डिमांड करे और उसका स्टॉक क्लियर हो. तो विष्णु को क्या करना पड़ेगा, एक घर पीछे आना होगा और जो 5 रुपए में जो चीज बेच रहा था वो उसे कितने में बेचने पड़ेगी 4 रुपए में. आया ना, आया ना. सो व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन प्राइस, डाउनवर्ड. डाउनवर्ड आया क्या 5 से 4 आया क्या बेटा, 5 से 4 आया क्या, 5 से 4 आया क्या, आया क्या. तो हमेशा याद रखो किसी भी चीज को लेकर देख लो, अगर उसका सप्लाई ज्यादा है, किसी भी चीज में मार्केट में अगर किसी चीज का सप्लाई ज्यादा है और उसकी डिमांड अगर मार्केट में कम है, तो ऐसे चीजों को मार्केट के अंदर बहुत कम प्राइस मिलता है. एग्जाम्पल आयरन, लोखंड, स्टील. सप्लाई बहुत है, डिमांड कंपैरेटिवली कम है, इसीलिए क्या किलो मिलता है हमारे यहाँ लोहा, लोहा, स्टील. व्हाट इज प्राइसेस ऑफ स्टील, हाँ जनरल नॉलेज बोलो क्या है. सब इरेशनल कंज्यूमर्स है. व्हाट इज प्राइसेस ऑफ स्टील, 1 kg स्टील इज इक्वल टू कितना है, अरे कितना है, हाँ 115. कितना है, इट इज रफली अराउंड समथिंग अराउंड 45 रुपीज अ केजी, 45 50. अभी कुछ बढ़ रहा है, कुछ 45 56. ठीक है. अब देखो मेरा पॉइंट क्या था बोलने का, मार्केट में स्टील का सप्लाई बहुत है लेकिन मार्केट में स्टील की डिमांड कम है, इसीलिए लोहे का दाम कम है. सोने का देखो, गोल्ड, गोल्ड का सप्लाई बहुत है क्या हमारे पास, नहीं. गोल्ड की सप्लाई कम है लेकिन गोल्ड का डिमांड बहुत ज्यादा है. हर लेडीज को 1-1 किलो चाहिए, इतने लेडीज के इतने किलो. तो मार्केट में गोल्ड का सप्लाई कम है और मार्केट में गोल्ड की डिमांड ज्यादा है. जब कभी भी किसी भी कमोडिटी की सप्लाई कम होती है, जब कभी भी किसी कमोडिटी का सप्लाई कम होता है
और उसकी डिमांड अगर बहुत ज्यादा हो तो उसका दाम बढ़ने लगता है, उसका दाम हाई होता है। इसीलिए 1 तोले सोने की कीमत क्या है? अराउंड 51,000 रुपीज। और यहाँ 1 किलो लोहे की कीमत क्या है? 51 रुपए। 51 रुपए किलो और 51,000 रुपए 10 ग्राम। इतना फर्क क्यों है? ड्यू टू क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड। एक और एग्जांपल लो, पेट्रोल अभी क्या दाम चल रहा है? नियरली 100। हाँ यस मोदी जी, यस, अभी 2 रुपए और बढ़ा दो, मतलब 100 हो जाएगा। चलो हम अज्यूम कर लेते हैं 100 रुपए हो गया। व्हाट इज द प्राइस ऑफ पेट्रोल? 100। ओके, हम इंडिया में हैं, हमारे यहां पेट्रोल की बहुत ज्यादा डिमांड है क्योंकि इतने सारे टू व्हीलर हैं, राइट? और फिर टू व्हीलरों पे इधर उधर फिरने वाले भी बहुत लोग हैं। फिरने वाले हैं तो कंज्यूम करने वाले भी हैं, कंज्यूम करने वाले तो डिमांड करने वाले भी हैं। तो बोलने का मतलब क्या है? हमारे यहाँ पेट्रोल की डिमांड बहुत है, बट आर वी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज? हम पूरा ऑयल क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। हम पूरा ऑयल क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ ऑयल उतना प्रोड्यूस होता है कि जितनी डिमांड है? नहीं। इसका मतलब हमारे पास डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। मैंने क्या कहा? अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो ऐसे चीजों के दाम बढ़ते रहते हैं हमेशा। ऐसे चीजों के दाम हमेशा बढ़ते हैं। तो बहुत रेयरली देखते हैं हम कि पेट्रोल के दाम कम होते। मैक्सिमम सिचुएशन में आप देखोगे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं लेकिन कम नहीं हो रहे। समझ रहे बात? क्यों हो रहा है ऐसे? क्योंकि डिमांड उसका बढ़ रहा है, सप्लाई उसका कम है। 2 मिनट के लिए मान लो हम सब सऊदी अरब में रहते हैं। हबीबी यो इज्जत, वल्लाह खा। अब 2 मिनट के लिए मान लो कि हमारा इसनु वाला बीबी is owner of big oil producing particular refinery. So he sits on the camel and he says, yes baby, bolo baby, what is the wala habibi? Masa topi भी गौर ऊंट पे। Just imagine आगे भी डांस। बुर्ज खलीफा, कौन सा गाना है वो? बुर्ज खलीफा ना? हाँ, विष्णु मस्त बुर्ज खलीफा। जस्ट इमेजिन सफेद सफेद कपड़े में विष्णु बैठा है और जो टोपी भी बन गया, हबीबी। ओके, नाउ अंडरस्टैंड द पॉइंट। आई एम ट्राइंग टू टॉक अबाउट ऑयल प्रोड्यूसिंग। छोड़ो मजाक के पीछे का उद्देश्य समझो। वी आर लिविंग इन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री। सऊदी के अंदर पानी के जैसे तेल बनता है। ये ऑयल प्रोड्यूसिंग की जो कंट्रीज है, ईरान, इराक, फिर आपका कुवैत, ये सारे जो देश है, यहाँ पे हमारे यहाँ जैसे पानी मिलता है वैसे वहां पे तेल बनता है, प्रोड्यूस होता है। तो वहां पे क्वांटिटी सप्लाइड बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां उतने कंज्यूमर नहीं है उनके खुद के देश में। तो वहां पे डिमांड मार्केट में कम है, क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा है। जो पेट्रोल हमारे यहाँ 100 रुपए मिलता है, वहां हमारे बिस्लरी के जैसे लीटर के भाव में 10 रुपए लीटर में मिलता है। अच्छा, मतलब इसका बोलना है कि सर अपन गाड़ी लेके वहां पे जाएंगे, पेट्रोल टैंकी फोन करके आएंगे। नाइस लॉजिक, नाइस लॉजिक। इसनो बोलने का उद्देश्य, यस प्लीज 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 प्लीज, हेलो, मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? जहां पे सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, तो हमेशा प्राइस कम होता है। डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है तो प्राइस बढ़ने लगता है, ज्यादा होता है। एक और रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं, जो आधे लोग पहन के बैठे हैं, वो है मास्क। ये मास्क फुकट भाव में 2-2 रुपए में मेडिकल पे मिल रहा था, कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। नहीं, मुश्किल से कभी कभार किसी कुछ हो गया वायरल, वो डॉक्टर लिख के देता जबरदस्ती उसके लिस्ट में, वो आ भी जाता 2 रुपए का। हाँ, कार्टून टाका। किसी के प्रिस्क्रिप्शन में लिखा है कि आपको वायरल हुआ है, आप प्लीज थोड़ा मास्क पहने, वो भी 2 रुपए में भी लेने को तैयार नहीं, हम निकाल दी। अचानक से कोरोना आ गया, कंपलसरी मास्क।
एक ही रातों रात, मतलब जैसे लॉकडाउन हुआ रातों रात हफ्ते के अंदर, जहां पे उस मास्क को बेचारे कोई पूछ नहीं रहा, वो मेडिकल के कोने कापरे में कहीं तो छुप के बैठा है, एकदम से हर कोई आके दूसरे मास्क दो, मास्क दो, मास्क मास्क मास्क। एक ही हफ्ते के अंदर उस मास्क की डिमांड हो गई 50 करोड़, 50 से 100 करोड़, जहां पे उसकी डिमांड ही नहीं थी, एकदम से 100 करोड़ की डिमांड। तो 100 करोड़ की डिमांड आएगी, ऐसे प्रोड्यूसर ने सोचा था क्या? तो उसने उतना प्रोडक्शन करके रखा है क्या? नहीं। किसको पता था कोरोना होगा करके? नहीं। तो शुरुआती दौर की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट मार्च एंड अप्रैल। तब सप्लाई कम था, तब सप्लाई कम था और क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज्यादा था। बाद में ब्लैक में बिक रहे थे ये पूरे मास्क, शुरुआती दौर में झगड़े हो रहे थे वो मास्क के लिए, हमें दो हमें दो, दुकानदार एक दूसरे से झगड़ रहे थे वो सप्लायर से, हमारा थोड़ी देर पाटवा, बड़ा हमारा 10 तरी पाटवा, 20 तरी पाटवा। इससे पहले वाले सिचुएशन में वो बेचारा फोन करके परेशान, एक आधा पैकेट भेजूगा, नको 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 नको, एक 10-20 मास्क, नको 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 नको, शेट खूप माल पडू नये, ते कोपऱ्यात पडू नये। और अभी तब वही फोन लगा, साहब थोड़ा मास्क भेज दो ना, 1500, 10-1000 कुछ तो भेज दो ना। वही 2 रुपए मास्क मार्केट में कितने में बिकना लगा अचानक? 15 रुपए में, 15 रुपए, 20 रुपए, 2 रुपए का मास्क 20 रुपए में। क्यों? क्वांटिटी डिमांडेड वॉज फार ग्रेटर देन द क्वांटिटी सप्लाइड। जब डिमांड ज्यादा होता है और सप्लाई कम होता है, तब प्राइस को अपवर्ड पुश मिलता है। प्राइस को क्या मिलता है? अपवर्ड पुश। जब सप्लाई ज्यादा होता है किसी चीज का और उसका डिमांड कम होता है, तो प्राइस को डाउनवर्ड पुश मिलता है। अभी हमारे ये सिचुएशन पे आओ फिर से। विष्णु के पास कितने बेड है? 31। डिमांड कितना है? 5। सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो प्राइस को डाउनवर्ड पुश मिलेगा। विष्णु को दाम कम करने ही पड़ेंगे। विष्णु अगर दाम कम नहीं करता तो ये 26 का स्टॉक पड़े पड़े जगह पे खराब हो जाएगा। विष्णु ने बोला ठीक है। ही रिड्यूसेस द प्राइस फ्रॉम 5 to 4। He reduces the prices from 5 to 4। जब 5 रुपए था तब वो 31 सप्लाई करता था, अब 4 रुपए हो गया। Prices has reduced as the price decreases, supply decreases। He reduced the supply from 31 to 25। As the price decreases, demand increases। So demand has increased from 6 to 12। अभी भी क्या ज्यादा है? सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है। सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, पुश कौन सा? डाउनवर्ड। कौन सा पुश है? डाउनवर्ड पुश। नेक्स्ट पुश के बाद वापस से प्राइस क्या हो गया मेरा? 3। वापस से प्राइस क्या हो गया मेरा? 3। अब 3 पुश होने के बाद हो गया, लेकिन अब क्वांटिटी डिमांडेड कितना है? 19। क्वांटिटी सप्लाइड कितना है? 19। क्वांटिटी डिमांडेड कितना है? 19। क्वांटिटी सप्लाइड कितना है? 19। नाउ देयर इज एन इक्विलिब्रियम। देयर इज एन इक्विलिब्रियम। कैन आई से 3 is the price where Vishnu is ready to supply all the quantity and the buyer is ready to buy all the quantity. So can I say 3 is my equilibrium price, the price at which the seller is ready to sell and the buyer is ready to buy. Are you getting my point? जब कभी भी इक्विलिब्रियम प्राइस आता है तब डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होता है, और इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर ना अपवर्ड पुश होता है ना डाउनवर्ड पुश होता है, एक बैलेंस रहता है, एक बैलेंस होता है। हाँ या ना? गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? अब देखो, प्राइस और 2 रुपए हो गए। 5 रुपए की चीज 2 रुपए में हो गई, लेकिन 2 रुपए में सप्लाई ज्यादा रहेगा क्या? नहीं। सप्लाई विल बी 12। एज द प्राइस डिक्रीजेस, सप्लाई डिक्रीजेस, बट एज प्राइस डिक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस। अब डिमांड कितनी हो गई? डिमांड कितनी हो गई? 25। देखो, डिमांड इज 25, डिमांड इज 25, सप्लाई इज 12। तो अब प्राइस को कैसा पुश मिलेगा? अपवर्ड पुश। प्राइस को कैसा पुश मिलेगा? अपवर्ड पुश। डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, अपवर्ड पुश। सप्लाई ज्यादा, डिमांड कम, डाउनवर्ड पुश।
बाद में और प्राइस कम कर लो, प्राइस हो गया 1, प्राइस हो गया 1, 1 प्राइस होते ही क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है मेरी 31, लोएस्ट प्राइस हाईएस्ट डिमांड, लोएस्ट प्राइस लोएस्ट सप्लाई, सप्लाई कितना कर दिया बेटा मैंने 6 सप्लाई है, 31 का डिमांड है, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो प्राइस बढ़ते हैं, तो क्या मिलता है अपवर्ड पुश। अब मैं जो चीज बोलने की कोशिश कर रहा हूं ध्यान दो, ये सिचुएशन को ऑब्जर्व करो और ये सिचुएशन को ऑब्जर्व करो। ऊपर वाले सिचुएशन में सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो ऊपर से प्राइस नीचे की तरफ ढकले जा रहे हैं। नीचे वाले सिचुएशन में डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो ऊपर की तरफ ढकले जा रहे हैं। अल्टीमेटली ऊपर से ढकलो नीचे से ढकलो, अल्टीमेटली वो कहां आकर रुकेंगे इक्विलिब्रियम पर, कहां आकर रुकेंगे इक्विलिब्रियम पर। तो जब मार्केट में डिमांड ज्यादा रहेगा और सप्लाई कम रहेगा तो प्राइस को पुश किया जाएगा। कब तक पुश किया जाएगा, जब तक इक्विलिब्रियम पे नहीं आता। इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाई इक्वल नहीं होते। जब मार्केट में सप्लाई ज्यादा है और मार्केट में क्वांटिटी डिमांडेड कम है तो उसे डाउनवर्ड पुश किया जाएगा, डाउनवर्ड पुश 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 करते उसे उस पॉइंट तक पुश किया जाएगा जहां पर इक्विलिब्रियम नहीं आता। एक बार इक्विलिब्रियम आ गया वहां पे वो चीजें ऑटोमेटिकली सेटल हो जाती है। तो ये जो तराजू है डिमांड और सप्लाई का, ये जो डिमांड और सप्लाई का तराजू है, इसमें बैलेंस जो है कब आता है, कैसे आता है, समझ गया। अब मान लो ये मेरा डिमांड है, ये मेरा डिमांड है, ये मेरा सप्लाई है। डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो प्राइस को क्या करेंगे हम, प्राइस को अपवर्ड भेजेंगे, राइट। प्राइस को जैसे अपवर्ड भेज देंगे, सप्लाई बढ़ता जाएगा। जैसे प्राइस इंक्रीज सप्लाई इंक्रीज, धीरे 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 ये आके इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। अगर सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है तो प्राइस को डाउनवर्ड, प्राइस को कम करते जाएंगे तो डिमांड बढ़ता जाएगा, अल्टीमेटली कहां आ जाएगा इक्विलिब्रियम। ये तराजू के जैसे है। तराजू को अगर बैलेंस करना है तो दोनों की क्वांटिटी सेम होने चाहिए और उस प्राइस पे जहां पे वो सेम रहेगा उसे हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो। डाउनवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट, इक्विलिब्रियम समझ में आया। किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ पूछना है। अब देखो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकालना है अपने को, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड इक्विलिब्रियम प्राइस। डायग्राम में y एक्सिस पे क्या है, प्राइस, y एक्सिस पे क्या है, प्राइस, और x एक्सिस पे क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड। नाउ सी हाउ इज द डिमांड कर्व, हाउ इज द डिमांड कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यस और नो, हाँ या ना। हाउ इज द डिमांड कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके। How is the supply curve? Upward sloping from left to right. As the price of the product increases, demand for the product decreases. As the price of the product decreases, demand for the product increases. Hence, there is inverse relationship between price of the product and its quantity demanded. Due to inverse relationship between price of the commodity and its quantity demanded, the demand curve is downward sloping from left to right. Hi, Anna. When the price of the product increases, quantity supplied increases. When the price of the product decreases, quantity supplied decreases. Hence, there is direct positive relationship between price of the product and its quantity supplied. As there is direct positive relationship between price of the commodity and its quantity supplied, the supply curve is always upward sloping from left to right. They both are intersecting at a point. That particular point is nothing but point E. My dear friends, you have learned in maths, whenever two curves intersect, at the point of intersection, they both curve are equal. So can I say at the point of intersection point E, both demand and supply are equal? Yes or no? At the point of intersection E, both demand and supply are equal. और अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला? The point where demand and supply are equal is the point of equilibrium. 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 तो इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से जो मैं नीचे की तरफ बना रहा हूं, ये हो गया मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस। क्या हुआ बेटा मेरा? इक्विलिब्रियम प्राइस, जो कितना है 3। और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये जो लाइन ड्रॉ की है, ये मेरा क्या है? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, जो कितनी है 19। जो कितनी है 19। जो कितनी है 19। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज 19 and equilibrium price is 3, as we have drawn this demand and supply schedule from the schedule which is given above. Are we okay? Are we okay? Are we okay?
So producer equilibrium is a point where demand is equal to supply, and the point of equilibrium, that quantity is called as equilibrium quantity, and the price is called as equilibrium price. Equilibrium price is the price at where the seller is ready to sell and the buyer is ready to buy, and quantity demanded is equal to quantity supplied. Are we okay? Are we okay? So finally I complete chapter number 1. So finally we complete the entire chapter. So finally we complete entire chapter of theory of demand and supply. You should be very happy to know that you have already covered 50 marks of your 12th standard economics. Chapter number 2, yes, chapter number 2 is done. Chapter number 3A done. Chapter number 3B done. Chapter number 4 done. There are 10 chapters, 4 chapters are already completed. Thank you so much.